third stage, children, for formation of a company is the capital subscription stage. Okay, what is being given in the capital subscription stage here? Okay, as soon as the company, children, gets the certificate of incorporation. Okay, which company? As soon as a public company gets the certificate of incorporation, then a public company has to go for the third stage, that is capital subscription stage. A private company need not to go for the capital subscription stage, children. Why? Because private company is not allowed to raise capital from outsiders. Okay? So that is why only a public company will go for the capital subscription stage, because it is in this stage only that the company say is going public, लोगों तक जा रही है and लोगों को अपने shares company बेचना चाहती है. How can a company sell its shares? The first thing that it has to do is, children, to go for the SEBI approval. What is SEBI? That is known as the Securities Exchange Board of India. Okay, every company has to take approval of the Security Exchange Board of India. That is the security market. It is a regulatory body. Okay, it is what? A body that governs the share market. Any company which is dealing in buying and selling of shares. Okay, before going for this buying and selling of shares, each company has to go and get itself been approved here from the Security Exchange Board of India. Okay, because it is SEBI only that is going to provide the registration to a company, and each company has to follow the guidelines given by SEBI. ओके, अगर हमें कोई भी शेयर्स खरीदने बेचने अपने कंपनी के, तो सबसे पहले हमें शेयर मार्केट नहीं जाना. वी हैव टू गो टू द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज अ प्रॉपर ऑफिस. ओके, दैट और अ रेगुलेटरी बॉडी वी कैन से. ये एक बॉडी है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिसमें, और ये रूल्स रेगुलेशन बना के चलती है हर एक उस कंपनी के लिए जो भी कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है. ओके, एंड ईच एंड एवरी कंपनी हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस which have been led by SEBI. It is mandatory, it is very compulsory. The second thing, children, we have is a prospectus or statement in lieu of prospectus. What is a prospectus, children? It is simply an advertisement. Okay, whenever a public company, okay, it is going to invite people from outside, like आपकी कंपनी और आप लोगों को बाहर से बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी में आके पैसा लगाओ, तो हम कैसे बोलेंगे? हम लोगों को पहले बताएंगे. How do we inform the people, children? It is company has to prepare an advertisement, a document. This document is called prospectus. कंपनी को एक prospectus निकालना होगा, issue करना होगा. Prospectus क्या है? It is a circular or an invitation, okay, to the public. We are inviting the public, we are issuing a prospectus, and in prospectus we are writing that our company wants to sell its shares. And for selling shares, we want the people from outside. So all those who want to subscribe or buy the shares, जो भी हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब खरीदना चाहते हैं, तो वो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें. ये डॉक्यूमेंट भी, जो हम डॉक्यूमेंट निकालने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट भी सबसे पहले हमें कहाँ जमा करना है? रजिस्ट्रार में जमा करना होता है. इट इज कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू इशू द प्रोस्पेक्टस बिफोर द रजिस्ट्रार. ओके, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी. अगर हमें बाहर वालों से पैसा मंगाना है तो बाहर कैसे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे? प्रोस्पेक्टस के थ्रू. तो प्रोस्पेक्टस कैसे हम बना रहे हैं, उसको बना के हमें रजिस्ट्रार में जमा करके अप्रूव करवाना होता है. आई बिलीव इट इज क्लियर. चाहे वो प्रोस्पेक्टस होगा या वो एक स्टेटमेंट हो सकती है इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस. जैसे कि कभी कभी कंपनीज जो है वो बड़ा प्रोस्पेक्टस नहीं छपाना चाहती, मतलब उसमें खर्चे बहुत होंगे ऐसा मानते हुए. सो इफ कंपनी वांट्स टू सेव मोर एक्सपेंसेस, ना लगे, इसलिए कंपनी क्या करती है? एक रिटन सिर्फ लाइंस में दे देती कि हम एक स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस हम ये निकालेंगे. मतलब हम एक बड़ा एड में खर्च ना करके सिर्फ जनरल 2 लाइंस दे देते हैं कि हम भी पब्लिक से पैसा मंगवाने के लिए लोगों को इन्वाइट करेंगे. दैट्स इट. Next is appointment of bankers, brokers and underwriters. All of you know, children, banker. Who is a banker? Every company needs the help of a bank. Okay, because we will be receiving money, we will be depositing applications. तो इस काम को करने के लिए हमें बैंक सपोर्ट करेगा. Then to sell the shares, we are selling the shares. So for selling shares, we need to appoint
ब्रोकर्स और इंटरमीडिएटर्स, ठीक है। ये ब्रोकर्स हमें मदद करेंगे शेयर्स को बेचने में। वेरी इजीली वी कैन सेल द शेयर्स थ्रू द ब्रोकर्स और द कमीशन एजेंट। ये ब्रोकर्स जो है अपनी कमीशन, अपनी फीस हमसे चार्ज करेंगे और हम इनके थ्रू अपने शेयर्स बिकवाएंगे। नेक्स्ट इज अंडरराइटर्स। ओके, से इफ अ कंपनी इज नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स, जब भी एक कंपनी को श्योरिटी नहीं होती कि हमारे पूरे के पूरे शेयर्स बिक जाएंगे, तो इस कंडीशन में कंपनीज क्या करती हैं, कुछ लोगों को अंडरराइटर मतलब एक गारंटर के तौर पे अपॉइंट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये अंडरराइटर्स जो होते हैं, अगर कंपनी पूरे शेयर्स नहीं भी बेच पाई, अंडरराइटर्स जो है वो कंपनी के शेयर्स बिकवाने में कंपनी की मदद करते हैं। दे मे चार्ज कमीशन फ्रॉम द कंपनीज। नाउ पे अटेंशन अगेन योर चिल्ड्रन हु आर बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। जब भी व्हेनेवर से आपकी कंपनी और आप कंपनी में शेयर्स बेच रहे हो, तो क्या आप अपनी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट कंपनी में लोग आएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, वहां करेंगे? तो आप अपना नॉर्मल काम कब करेंगे? इट इज डिफिकल्ट। कंपनी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं करती। फॉर दिस कंपनी अपॉइंट बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स दे चार्ज कमीशन, क्योंकि बैंक हमें सर्विस दे रहा है। बैंक के थ्रू ही बैंक एक इंटरमीडिएटर बन के हमें मदद कर रहा है कि रिसीव करेगा अमाउंट, डिपॉजिट करेगा लोगों का पैसा, और उसके बदले में लोग जब वहां पे डिपॉजिट कर देंगे तो लोग जाकर के अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। नाउ खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? दे कैन टेक द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर। ब्रोकर किसने अपॉइंट किए? यही कंपनी ने अपने ब्रोकर्स अपॉइंट किए हुए हैं। तो हम अलग अलग ब्रोकर्स के पास जाके उनकी एडवाइस लेके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। देन अंडरराइटर्स कौन है? जब हमने कंपनी में शेयर्स बेचने की बात सोची तो हमने मान के चला कि वी विल बी सेलिंग 100 शेयर्स या 1000 शेयर्स हम बेचेंगे, और मान लीजिए हमारे सिर्फ 800 शेयर्स बिके, तो अगर हमने अंडरराइटर्स लिए हैं तो वो अंडरराइटर हमारे को गारंटी देंगे कि हम आपके ये भी बाकी के 200 शेयर्स बिकवा के आपके पूरे 1000 शेयर्स बिकवा देंगे। कंपनी के 1000 शेयर्स बिक जाएंगे। इट मीन्स कंपनी विल बी गेटिंग व्हाट? द मनी। द मेन पर्पस ऑफ कंपनी इज गेटिंग मनी बाय सेलिंग शेयर्स। I believe it is clear to you, children. The next thing point that we have, children, is minimum subscription. Now understand this, children. To make sure that the company does not have shortage of funds, okay, it is made compulsory that the company must receive applications for some minimum number of shares, and this is called as minimum subscription. Okay. Now जब भी कंपनी के पास शॉर्टेज की फंड्स है, क्या शॉर्टेज है, किस चीज की शॉर्टेज है? फंड्स की शॉर्टेज है। Then what the company will do, children? The company will have to make it compulsory. ठीक है, हमारे पास शॉर्टेज है फंड्स की, तो हमको यहाँ कंपल्सरी करना पड़ेगा कि हमको एटलीस्ट मिनिमम इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बिक जाने चाहिए। तो जब हमारे उतने मिनिमम शेयर्स बिक जाएंगे और हमारे पास उतना मिनिमम अमाउंट आ जाएगा, दैट मिनिमम अमाउंट दैट वी रिसीव इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। सब्सक्रिप्शन वर्ड कहां से आया है? सब्सक्राइबर्स से, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। मतलब हमारे पास मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब शेयर्स खरीदने वाले हो गए, और उन्होंने जो शेयर्स खरीदे उससे जो हमारा अमाउंट आया दैट इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अब अमाउंट आने के बाद व्हाट विल द कंपनी डू? अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। जब हमने एक टारगेट बनाया है कि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना आना चाहिए, ओके, देन पब्लिक कंपनी जो है तब तक शेयर्स नहीं देगी लोगों को जब तक हमारे पास उतने सब्सक्राइबर्स नहीं आ जाते। लाइक एज पर द रूल्स ऑफ सेबी, इट इज कंपल्सरी फॉर अ कंपनी दैट इट मस्ट रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 days. Now what is 90% ऑफ द अमाउंट? मतलब जितना अमाउंट हमने सोचा है शेयर्स बेच के हमें लाना है, उसका 90% हमारे पास आना चाहिए। लाइक अगर हमने 1 करोड़ सोचा तो 90 लाख हमारे पास आना चाहिए। इफ इट इज नॉट कलेक्टेड, इतना अमाउंट नहीं आ रहा है, तो कंपनी जो है शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी। इफ अ कंपनी फेल्स टू इशू देन इट मस्ट रिसीव, जितने भी पैसा आया है कंपनी के पास, इट हैज टू रिटर्न इट बैक टू द एप्लीकेंट्स। अगर कंपनी के पास कम अमाउंट आया, मान के चलो सिर्फ 50 लाख आया, आना कितना था? 90 लाख नहीं आया, तो अब जितना 50 भी आया है तो कंपनी को उसको विद इन अ पीरियड ऑफ से 130 days, जब प्रोस्पेक्टस निकाला था उस दिन से लेकर के काउंट करेंगे 130 days तक में कंपनी को वो पैसा जिनसे आया है या जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उनको वो अलॉटमेंट मनी भी रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज क्या है यहाँ पे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या बोल रहा है? कंपनी जो है जब फंड्स की शॉर्टेज है तो कंपनी इज इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड।
ओके, और कंपनी ने टारगेट बनाया जब हम बाहर से पैसा मंगवा रहे हैं तो हमें इतना पैसा बाहर से आ जाना चाहिए। इफ इन केस बाहर से पैसा नहीं आया तो आप मान के चलो ना, कंपनी की फंड्स की जरूरत तो पूरी नहीं हो पाएगी, कंपनी के पास फंड्स नहीं होंगे, फिर अब क्या कंपनी करेगी? पैसा कम आया तो विल द कंपनी गो टू बैंक? अब यहाँ पे लोगों से भी पैसा लेगी कंपनी, एक लायबिलिटी बढ़ाई, और अगर बैंक के पास जाके पैसा लेगी तो वो अपनी दूसरी लायबिलिटी बढ़ाएगी, इजंट इट? तो यहाँ पे कंपनी ने फिक्स किया कि जब हम सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो हमारे पास 90% तो पैसा आ जाना चाहिए 120 डेज में। अगर नहीं आया, ठीक है, और हमारे पास जितना भी पैसा आया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर वो पैसा कम है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उस कंडीशन में हमने जितना भी पैसा रिसीव किया है लोगों से वो हमें 130 डेज में अपने लोगों को वापस देना पड़ेगा। Application in the stock exchange. What is given in this point? Application in the stock exchange. Okay, always children, a firm should get itself listed in the share market. हर एक कंपनी को जब अपने शेयर्स बेचने हैं तो हमें स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। Then company has to apply in the recognized stock exchanges. जो जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, ओके, दीज आर द टू स्टॉक एक्सचेंजेस पॉपुलरली वर्किंग इन इंडिया, BSE एंड NSE। तो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज के पास जाके हमको अपनी कंपनी की साउंडनेस बतानी होगी, गुडविल बतानी होगी कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। जब कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में स्टॉक मार्केट को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट विल अलाउ द कंपनी टू लिस्ट इट्स शेयर्स। ओके, I am reading from the book, children. Point given: application in the stock exchange. A firm must get itself listed in a stock exchange before selling its securities to the general public. हम लोगों को बताना है, हमको जरूरी है, तो कैसे पता चलेगा? इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से जाएगी। Company must apply in any of the recognized stock exchanges to get the permission. कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके रजिस्टर या रिकॉग्नाइज कर सकती है। एक बार सेबी से अप्रूवल ले लिया, अब उसके बाद कंपनी के पास दो चॉइस है। कंपनी कैन गो टू आइदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नोन एज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नोन एज NSE न्यू दिल्ली। ओके, नाउ इन दिस द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज क्या करती है? सबसे पहला दे वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस की कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, पहले ये पता लगाएंगे, वो लोग इंक्वायरी करेंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड है देन द नेम ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड। जब BSE या NSE या मार्केट से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कंपनी अच्छी है तो उस कंडीशन में इन लोगों को अलाउ किया जाता है कि ये अपने शेयर्स को आकर के यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, और इनके शेयर्स को लोग न्यूज में, डिफरेंट चैनल्स में, स्टॉक मार्केट्स में कंपनीज के नाम लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ आफ्टर द नेम हैज बीन लिस्टेड, जब हमारा नाम लिस्ट में आ गया तो कंपनी क्या करती है? प्रिपेयर करती है एक लिस्ट जिसको बोला गया है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है? इट इज सिंपली अ स्टेटमेंट चिल्ड्रन which is giving the details about the name and the address of all the share holders. जितने भी लोग कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हैं उन सबकी डिटेल लिस्ट बना के जो तैयार की जाती है, हमने किस किस को नाम पे अलॉट किया है, दिया है शेयर, ठीक है, उन लोगों की डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। यही रिटर्न जो कंपनी के पास आया है, जिन्होंने लोगों ने खरीदा है, उनकी डिटेल, जो लोग खरीदने वाले हैं उनका एड्रेस, वो लोग कहाँ के हैं, ये सारी चीजें हमको रजिस्ट्रार में जमा करनी होती है। और हमने अपने एक एक जितना भी पर्सन है उनको कितने कितने शेयर्स बेचे हैं, शेयर्स की डिटेल, सभी कुछ यहाँ पे जमा करना जरूरी होता है। The last stage, children, which a company has to perform, that is public company, is commencement of business. Now, after say selling or subscribing the shares, okay, after minimum subscription work and all, everything is being done. Now a company must file the following last documents before the registrar. What are those last documents, children? It is simply point number 1 in the book, a declaration that shares payable in cash have been subscribed for and minimum subscription has been received. अब यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं रजिस्ट्रार के सामने कि हमने जितने शेयर्स लोगों से मांगे थे उतने हमारे पास आ गए हैं, उतने सब्सक्राइबर्स ने शेयर्स खरीद लिए हैं, कैश आ गया है. We have to declare it. Then a declaration that every director has paid in cash the application and allotment money on its shares. सेकेंड डिक्लेरेशन में क्या देना है कि हर एक डायरेक्टर ने कैश दे करके कंपनी में शेयर्स खरीद लिए हैं और कंपनी ने उनके नाम पे शेयर्स इतने इतने शेयर अलॉट कर दिए हैं एक एक शेयर होल्डर या डायरेक्टर को. अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स.
हम एक और डिक्लेरेशन देंगे कि अब यहाँ पे हमारा कोई भी पैसा ऐसा पेंडिंग नहीं बचा है, मतलब जो देने वाले हैं उन्होंने सबने पैसा कंपनी को दे दिया है, कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है। लास्ट, अ डिक्लेरेशन दैट अबव requirements have been compiled with, this declaration can be signed by the directors or the secretary of the company। और लास्ट में पूरे डॉक्यूमेंट्स के एंड में कि हमने जितने भी डिटेल सबमिट किए वो सब सही है, और एंड में वी कैन गेट इट साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। Now children, when a company gets itself registered, it has to submit various documents. There are documents which each and every company has to prepare. Okay, now let us understand the first important document, children, is Memorandum of Association. Memorandum of Association is popularly called as MOA. The abbreviation is of MOA is Memorandum of Association. This is the principal or the most important document of the company, children. Why it is the popular or the important document, children? Because it is this document only that contains the objectives of the company. It also contains what all powers each and every person will have. हर एक पर्सन को कितने कितने पावर्स दिए जाएंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. It also describes the operations of the company, what all work the company will be doing. Also children, say each and everything that is being made here, when and how it can be altered. कब कब उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. Each and everything is being mentioned in MOA. Also children, memorandum of association is important because it provides the information to all outsiders. हमारे MOA में हर एक information दी है which is very much useful for the suppliers, जो हमें सप्लाई करने वाले हैं, creditors जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, and to all the known people, means the investors. So it is also known as, this document children is also known as the Doctrine of Outdoor Management. Other name for MOA is Doctrine of Outdoor Management. Okay, what is MOA children? Let us revise it fast. MOA is the principal or the most important document of the company. MOA है क्या? It only contains children the objectives of the company. Means for what purpose the company is being formed. Then apart from the objectives, it also contains what all will be the powers that will be given to each and every person who's in the company. MOA contains all the necessary information which is going to be very useful also. ठीक है, MOA में वो सारी जानकारी है जो कि यूजफुल है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. क्रेडिटर्स हैं, लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, जो भी हमसे डील कर रहे हैं. ईच एंड एवरी पर्सन हु आर डीलिंग विद द कंपनी, okay, they can get the information from the MOA. Now what is required children in this memorandum of association is the first clause we have is the name clause. What is name clause children? Okay, this clause contains the complete name of the company. Okay, it always contains what? The complete name of a company. Then company can choose the any name children whichever it wants. Only two things the company has to keep in mind. If the company is a public company, okay, कोई भी public company है, you can see that it has to use the word limited. Each public company has to use the word LTD, that is limited. Whereas if the company is a private company, it has to use the word private limited, like Ram and Shyam Private Limited, Reliance Limited. If only word limited is used, it reflects that it is a public company. But if the word private limited is used, then it tells that the company is a private one. Also children, most important, whatever name we are selecting, name should always be unique. It should not be matching with any other company in the town. Why? Because if somebody starts with a school name as Bartsley, then it will give an impression कि Bartsley की ही Unit 3 खुल गई, isn't it? And the registrar cannot approve that name children because it is not related to Bartsley. Okay, name should not be similar, it should be identical. Identical means it should be different, unique, not similar to any other school in the town. Most importantly also, if a company is run, then company cannot also use the word cooperative.
अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी अपने कंपनी के नेम के आगे वर्ड कोऑपरेटिव नहीं लगा सकती. Only the cooperative societies like Amul Cooperatives. Indian Coffee House is also run by cooperative society only. So they can use the word cooperative. Company cannot use the word cooperatives over here. Name should not give any connection or link of the company with the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. नाम ऐसा भी ना हो जिसमें लोगों का इंप्रेशन हो कि ये सरकारी कंपनी है. ओके चिल्ड्रन, नाउ इन दिस नेम क्लॉज, if a company wishes to change its name in the future, then it has to go for passing a special resolution by the central government. हमें कंपनी को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास जाकर एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के तहत हमारी कंपनी का नेम हम आगे जाकर के कभी भी इन फ्यूचर चेंज करवा सकते हैं. मतलब ऑल्टरेशन इन द नेम क्लॉज इज पॉसिबल by taking the permission from the central government in future if we want. Next is the domicile or the situation clause. What is a domicile or a situation clause? We know children that whenever a company is working, okay, the company will be definitely in one state. किसी एक state में होगी, किसी एक city में होगी. Where will be the say registered office of the company? अब उस स्टेट में भी देर आर सो मेनी सिटीज, तो कंपनी मेनली कौन सी सिटी से वर्क करेगी, उनका मेन ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा. इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू फाइल द प्रॉपर एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, सो दैट जैसे हमारे कोई भी डीलिंग्स हैं, हमारे कोई भी क्रेडिटर्स हैं, हमसे कोई भी इंक्वायरी करना चाहता है तो वो हमसे कहाँ के मिले, कहाँ हमको पेपर्स भेजे. ओके, इट इज अ मस्ट दैट कंपनी शुड हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर देयर कैन बी ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी दैट कैन टेक place. What is alteration of the situation clause now? In case if the company wants to change the registration office, अगर कंपनी अपना registered office shift कर रही है दिल्ली से लेकर के कहीं और हरियाणा, okay, if company is shifting it from Jabalpur to say maybe Indore, okay, then also the company has to give a special say application to the say the registrar, and then the office can be shifted from one place to another. So again, for the domicile or the situation clause also children, we can get the alteration being done, but alteration अपने आप से नहीं होगा. We have to give the application to the registrar and by a special resolution that is being passed by the office. Resolution इसके लिए एक application हमें registrar हमको एक application या इसके लिए एक एक्ट के तहत जाके परमिशन देगा, तब जाकर के हम अपने कंपनी का एड्रेस जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट किया जा सकता है. We have is an object clause. What is an object clause, children? Say this is the important clause of the MOA, children. Okay, every company should mention the object for which it has come into existence. हर एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है, कंपनी की स्कोप है, कंपनी का एक लिमिट है, किस लिमिट तक कंपनी कौन कौन से काम करेगी. हमको ये सारे ऑब्जेक्ट जो है डिफाइन करने होते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलता है? कंपनी इज ओनली अलाउड, ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शुड ऑलवेज बी व्हाट, इट शुड बी लीगल. कंपनी को सिर्फ तभी रजिस्ट्रार अलाउ करेगा जब कंपनी के ऑब्जेक्टिव सारे लीगल हैं. कंपनी इज नॉट say going anything against the law. Company is not doing anything contrary or contradictory to the law. और ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इमोरल. हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वर्किंग फॉर दी मॉरल्स, अपने बिजनेस में कुछ एथिक्स नियम कानून को फॉलो करते हुए. अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट हैगा कि इलीगल काम करना है, लॉ के अगेंस्ट जाना है और कुछ भी है जो इमोरल है, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट क्लॉज को फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता. सो इट इज मैंडेटरी कि हमें यहाँ पे क्लियरली बताना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो लीगल है, हम लीगली फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे, हम कोई भी प्रोविजंस को रूल्स को तोड़ेंगे नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कभी भी इमोरल एक्ट्स नहीं करेंगे. नेक्स्ट चिल्ड्रन से अगेन ये ऑल्टरेशन पॉसिबल है अगर इफ इन केस द कंपनी वांट्स टू ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट, देन अगेन द कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम द लॉ बोर्ड ऑफ द कंपनी. कंपनी का स्पेशल लॉ बोर्ड्स होते हैं जो कंपनी को गवर्न करते हैं, तो वहां जाकर के हम अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस जो भी लाना चाहें वो इन फ्यूचर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द कैपिटल क्लॉज. व्हाट इज द कैपिटल क्लॉज चिल्ड्रन? वी नो दैट एवरी कंपनी बिगिंस विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. Okay, the capital with which a company starts its business
That is known as the authorized capital of the company. Always remember, the capital with which a company begins working is known as the authorized capital. Okay, so company has to issue only that number of shares which are authorized by its memorandum. अब हमने जो भी ऑथराइज कैपिटल मेंशन किया है उसके ही अकॉर्डिंग हम कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं. अगर टाइम टू टाइम जैसे हम और लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो इसको भी हम कहां डालेंगे? ऑल्टरेशन क्लॉज में डाला जाएगा. मतलब जब हम ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो हमें ऑल्टरेशन क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा कि वी हैव इनवाइटेड पीपल फ्रॉम आउटसाइड. तो ऑल्टरेशन इन द कैपिटल क्लॉज इज ऑल्सो बीन टेकन बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड. कंपनी बोर्ड हमें इसके लिए भी एक स्पेशल परमिशन ग्रांट करता है जिसमें हम अपने कैपिटल अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. लायबिलिटी क्लॉज. व्हाट इज लायबिलिटी क्लॉज चिल्ड्रन? Now this clause children is also something in which we have already told you, okay, that liability of the members of a company is always limited. हर एक पर्सन की liability जो कंपनी से जुड़े हैं हमेशा उनकी लिमिटेड रहती है, तभी लोग आके कंपनी के साथ जुड़ते हैं. They do not want to work in partnership firms क्योंकि वहां पे liabilities क्या होती है? Unlimited. If a person has 1000 shares of face value of 10 each, अगर एक पर्सन ने 1000 शेयर्स खरीदे थे 10 रुपीज ईच के हिसाब से, मतलब 10,000 पे किया था. एंड इन केस कंपनी से हैज पेड हिम 7 पर शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. अगर कभी कंपनी को प्रॉब्लम आई और उस पर्सन ने कंपनी को 7 रुपए के हिसाब से पे कर दिया है, मतलब 10 रुपीज शेयर ईच है, 1000 लिए तो हुआ 10,000. इफ इन केस यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर उसने 7 पर शेयर के हिसाब से पे कर दिया, इट मीन्स व्हाट? दैट ही हैज पेड हाउ मच? 7,000 पे कर दिया. Then now his liability is only standing up to rupees 3,000. मतलब 10 minus 7 that is 3 पर शेयर के हिसाब से बचा, तो 3 into 1,000 is 3,000 number of shares is the amount of the limit. Now he can be asked in future if in case company needs the money. ठीक है. Next one that we have is the again. Now for this also children we have the alteration to the liability clause. What is alteration? If we want to make any changes in this clause, then again we have to pass a resolution in the meetings. एक resolution के पास करने के बाद हम liability clause में भी changes ला सकते हैं. Next we have is the last one children that we have is the in the subscription or the association clause children. What is given? This clause is simply children a declaration. Last clause है in this. What is the company doing? All the directors of the company, okay, all the directors, they are giving the declaration that we the several persons whose name and address are submitted, हम सारे members जिनका नाम एड्रेस जमा किया गया है, we are wishing to be forming a company in accordance with the MOA. हमें MOA के सारे clauses मंजूर हैं, हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, हम शेयर होल्डर्स बन के काम करने के लिए अग्री करते हैं. ओके, एंड एट लास्ट दिस डिक्लेरेशन हैज टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स. लास्ट में ये डिक्लेरेशन जो है डायरेक्टर्स इसे साइन करके जमा करते हैं. एसोसिएशन मीन्स वी. ओके, वी ऑल द डायरेक्टर्स आर रेडी टू वर्क एज द पीपल ऑफ द कंपनी एंड वट एवर डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड इज ट्रू and correct that is being given, and this has to be signed children by all the directors of the company. Especially in public company we have 3 directors, तो ये तीनों directors इसको sign करके जमा कर देंगे. And children it is only this clause, सिर्फ ये एक ऐसा clause है जो alter नहीं किया जा सकता. There is no alteration allowed in this clause known as the association or the subscription clause.